Hello everyone. Now we are going to discuss part 2 of chapter 10 budget. Uh, to understand budget, it is very necessary to understand the account of budget. So, in order to truly understand the concept of a budget, it is necessary to get an idea of the accounts of a budget. तो कोई भी बजट को समझने के लिए उसका जो अकाउंट है उसका आइडिया होना इट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी थिंग. By the rules of accounts, every budget has two sides. The account तो 11th में सब्जेक्ट होता है तो आपको पता है कि उसकी दो साइड्स होती है. फर्स्ट द क्रेडिट साइड where the revenues means incomes of the government are recorded, and second the debit side where the expenditures of the government are recorded. तो एक जो साइड होती है वहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड होती है यानी गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज क्या है वो, और जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड होती है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है. फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन बोथ साइड इज as like this. On the credit side, there are two accounts on the credit side. First, current incomes, revenue incomes, and second is capital incomes. So, what is revenue income? So, the direct and indirect taxes, profits of public enterprises, fees and fines from public utilities, etc., constitute the revenue income. It is also called current income as the receipts and expenditures are made on transaction of the current period. तो जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्रॉफिटेबल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट ऑनर्ड है, जो भी लाइन्स है, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर आपने ब्रेक किया तो फाइन देना पड़ता है, ये सब मिला के बनता है रेवेन्यू इनकम. और ये करंट पीरियड में होता है यानी जब आप वो वस्तु करोगे तभी आपको देना है. सेकंड है कैपिटल इनकम. These receipts are from transactions which have long-term or continuous impacts on government funds. तो ये जो इनकम सोर्सेज है वो ऐसे इनकम सोर्सेज है जो कंटिन्यू ट्रांजेक्शन में रहते हैं और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर वो इम्पैक्ट करते हैं. इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट in own country and abroad, borrowing from central bank, income from disinvestment etc. are recorded in this account. तो जहाँ पे गवर्नमेंट मनी बोरो करती है या तो कंट्री के अंदर या तो बाहर से कहीं से या तो सेंट्रल बैंक के पास से, रिजर्व बैंक के पास से, या तो कोई भी गवर्नमेंट वेंचर है उसको डिसइन्वेस्ट करके वहाँ से जो इनकम होती है, दिस ऑल आर रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल इनकम. तो ये है क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड हम देखते हैं. तो ऑन द डेबिट साइड देर आर टू अकाउंट्स ऑन द डेबिट साइड ऑल्सो. फर्स्ट करंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो करंट एक्सपेंडिचर, these are expenditure made in the current year on salaries of government employees, interest payment on loan taken by the government, pension, subsidies, grants, current expenses on defense etc. यानी जो करंट ईयर में जो भी एक्सपेंस करेंगे वो सब काउंट होगा करंट एक्सपेंडिचर्स में. ये डेबिट हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है. एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. These are expenditures on transactions which have long-term or continuous impact on government funds. This account includes loans given by the government to other government, repayment of previously taken loans, capital expenses on social and economic services, as well as capital expenses on defense, etc. So these all are called capital expenses जो continuous करने पड़ते हैं क्योंकि सोशल और इकोनॉमिकल सर्विस के पीछे एक्सपेंस करना ही कंटिन्यू ही करना पड़ता है. So these all are called capital expenditure. Thus a budget has two accounts. Current account which recorded current incomes and expenditures, and second is capital account which records
कैपिटल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो अभी हमें आगे के टॉपिक में ये स्टडी करना है कि अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनका बजट अकाउंट कैसा होता है, कैसे बनता है वो। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। So the topic is India idea of budgets of different tiers of governments in India. Let us now get an idea of the budget on the three tiers of government in the Indian federal system, viz. Central government, state governments and local governments. Municipal corporation, municipalities and panchayats are count as a local governments. The first is concept of union budget, central government budget. In India, the central government's budget is presented by the finance minister in the Lok Sabha, usually in the last week of February every year. And the Lok Sabha approves the budget after discussion and, if necessary, amendments are made later. The budget is effective from April 1st to March 31 of the next calendar year. तो ये ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है, जो बैंकिंग ईयर जिसको हम बोलते हैं वो 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का काउंट होता है। वो यूजुअली हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर जैसा नहीं होता है। जो असेसमेंट ईयर जो होता है, अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो हर साल, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हर साल फरवरी के लास्ट वीक में ये जो भी स्टेटमेंट है, जो भी बजट उन्होंने बनाया वो लोकसभा में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है तो वो वहाँ पे चेंज होके फिर रिप्रेजेंट होता है। पर अगर ये एक सिविक का पॉइंट है कि इफ़ गवर्नमेंट डज नॉट pass the budget in the parliament, then that government should be resign from the post. अगर कोई गवर्नमेंट ने बजट पास नहीं कर पाई तो उनको वो फिर गवर्नमेंट टूट जाती है, वहाँ पे रिज़ाइन देना पड़ता है और फिर नए से इलेक्शन होता है। ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है हमारा, पर वो सिविक की बात है। अभी हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन बजट। तो यहाँ पे एक बैलेंस शीट है, उसमें करंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट जो ये ईयर का है, जो करंट ईयर का जो होता है वो, इसमें 2 कॉलम है। यहाँ पे ये साइड पे जो है वो आपकी इनकम क्रेडिट और यहाँ पे आपका एक्सपेंस डेबिट। तो इनकम कहाँ से होगी, तो टैक्स रेवेन्यू से। एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड ऑन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस सेक्टर्स विच आर नॉट डिटेल्ड इन द प्लान सच एज। तो टैक्स जो रेवेन्यू में से आएगा वो कहाँ से आएगा, तो सेकंड कॉलम में है रेवेन्यूज़ फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो एक्सपेंस कहाँ करना है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स बोरोड इन अर्लियर पीरियड, जो भी गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट देना है वहाँ पे। सेकंड वो एक्सपेंस करेगी सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल सर्विसेज, यहाँ पे वो एक्सपेंस होगा। थर्ड है इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, उसके पीछे एक्सपेंस होगा। नॉन प्लान ग्रांट्स एंड असिस्टेंस गिवन बाय सेंटर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है करंट एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से आएगी वो यहाँ पे एक्सपेंस होगी। सेकंड जो है वो है इनकम्स अदर देन टैक्स इनकम्स। तो टैक्स के अलावा ये जो सेकंड कॉलम है वो, कि टैक्स के अलावा अभी ये और कौन से रिसोर्स है जहाँ से इनकम होगी। और उसके सामने प्लान एक्सपेंडिचर, यहाँ पे ऑलरेडी प्लान किया है कि कहाँ पे एक्सपेंस करना है। तो टैक्स के अलावा जो सोर्सेस है इनकम के, वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम्स अर्न फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द सेंटर इन अर्लियर पीरियड, जो लोन्स स्टेट को या तो कोई और सेक्टर में दी है वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम होती है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चल रहे हैं वहाँ से प्रॉफिट या तो डिविडेंड जो मिलता है उसमें से इनकम होगी।
फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज़, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होती है वहाँ से जो भी फीस, एंट्री फ़ी या तो जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है और फाइन्स भरना पड़ता है, वहाँ से जो मनी आएगा वो। एंड असिस्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से जो हेल्प मिलती है वो। अब ये एक्सपेंस कहाँ करना है, तो ये यहाँ पे है मेंशन यहाँ पे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में इरिगेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड सच सेक्टर, इतने सेक्टर में एक्सपेंस करना है। प्लान ग्रांट्स एंड असिस्टेंस गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और यहाँ पे अब ये जो था वो करंट अकाउंट था, उसके नीचे यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन, तो हमें पता चलेगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाला पोर्शन है, ये जो है वो यहाँ पे ये है कैपिटल अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर, क्रेडिट एंड डेबिट, दो पार्ट है। अब इनकम कहाँ से होगी, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर कैपिटल इनकम्स लाइक दोज फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा, ये इनकम सोर्सेज है। और ये एक्सपेंस कहाँ पे होगा, जो ये लॉन्ग टर्म का जो अकाउंट है वो ये है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स बोरोड अर्लियर, लोन्स गिवन टू अदर गवर्नमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस। तो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जो ऊपर वाली जो हमने देखी वो करंट ईयर, करंट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे जो हमें देखना है वो क्या है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, ये 2016 में चेंज आया था। वाइल द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स a direct boost to economic development. For example, expenditure on irrigation, तो ये इरीगेशन फैसिलिटी डेवलप होगी तो उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो डेवलपमेंट में काउंट होगा। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, तो पेंशन कब आप दोगे, जब कोई पर्सन ने अपना जॉब ईयर्स कंप्लीट कर दिया, रिटायर हो गया है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे उनको पेंशन के थ्रू गवर्नमेंट पैसे देती है। और ये जो है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ से अभी आगे हमें कुछ रिटर्न में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी रिटायर हो गया है, 60 ईयर्स के ऊपर एज हो गई है। सो दे आर कैलकुलेटेड एज ए नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो स्टेट लेवल पे ये वर्ड्स यूज़ होता है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। और सेंट्रल लेवल पे जो होता है वो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये वर्ड्स होता है। अब हम स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस शीट देखते हैं। ओके, सो दिस वन इज द बैलेंस शीट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द states in India have less productive income sources than the central, while they have greater responsibility to fulfill in several sectors. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास सब्जेक्ट कम है, इसलिए इनके पास इनकम रिसोर्स भी कम है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक स्टेट के पास, उसके हर एक स्टेट में लोग रहते ही है तो एक्सपेंस तो रहेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी है कुछ सेक्टर में। तो स्टेट में देखते हैं, यहाँ पे है इनकम और यहाँ पे है एक्सपेंस। ये है करंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफ स्टेट बजट, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो करंट रेवेन्यू का पोर्शन है। शेयर विच स्टेट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट को टैक्स रेवेन्यू में से कितना शेयर देना है, एक ये इनकम सोर्स है। और सेकंड है वो एक्सपेंस कहाँ पे होगा, तो वो एक्सपेंस होगा डेवलपमेंटल वर्क के पीछे। कौन से, तो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई,
sanitation, welfare of SC, ST, OBC and so on. और सेकंड जो होगा वो इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये एक्सपेंस होगा. और सेकंड जो है टैक्सेस ऑफ द स्टेट, उसमें स्टेट को कौन से टैक्स में से बेनिफिट मिलेगा. तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम्स विच डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. सेकंड लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अदर टैक्सेस. और ये एक्सपेंस कहाँ करना है. तो नॉन डेवलपमेंटल वर्क में एक्सपेंस करना है, जो है जनरल सर्विसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशंस, फिजिकल सर्विसेज एंड सो ऑन, एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ग्रांट्स टू स्टेट्स. और अदर इनकम लाइक ग्रांट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट गिफ्ट्स एक्सेट्रा, ये भी एक इनकम सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट का. तो ये है रेवेन्यू बैलेंस शीट. और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कैपिटल अकाउंट है. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ स्टेट बजट में क्या होता है, उनके इनकम देखते हैं. तो पब्लिक डेप्ट, जैसे कि इंटरनल डेप्ट ऑफ द स्टेट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंटर, वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चालू होने वाला है उसका जो एडवांस आता है वो. सेकंड है रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू अदर गवर्नमेंट्स इन प्रीवियस पीरियड, जो दूसरी गवर्नमेंट को लोन दी है उसकी रिकवरी में से उनको बेनिफिट होता है, वहाँ से उनके पास मनी आता है. और थर्ड है अदर कैपिटल इनकम्स, उसमें होता है दोज ऑब्टेन फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट वेंचर्स है उनका डिस इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके थ्रू उनके पास पैसे आते हैं. और ये एक्सपेंस कहाँ होता है, तो पहले देखते हैं डेवलपमेंटल वर्क में. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज. और नॉन डेवलपमेंट वर्क कहाँ पे एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन इन प्रीवियस पीरियड एंड अदर एक्सपेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस टू लोकल गवर्नमेंट्स. तो यहाँ पे वो एक्सपेंस होता है. तो ये है कैपिटल अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. और जो ऊपर वाला जो है वो करंट अकाउंट ऑफ स्टेट बजट है, जो एवरी ईयर का वो होता है. अब इसी तरह हम लोकल गवर्नमेंट्स में देखते हैं कि क्या होता है. तो ये है बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट. इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन बिग सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ इन स्मॉलर सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट्स, तालुका पंचायत इन तालुकास एंड ग्राम पंचायत इन villages. Constitution has suggested the role of these governments, and these governments can also collect some income of their own. The main function of local governments pertain to water supply, water pumps, sewage, roads, cleanliness, public health, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंसर्न रीजन एंड सो ऑन. तो ये सब वर्क जो होता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होता है, जो आप मेरे ख्याल से 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा. अब उनकी जो बैलेंस शीट है, ये साइड वाली जो बैलेंस शीट है वो रेवेन्यू करंट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस शीट है, यानी ये साल का करंट ईयर का. तो यहाँ पे इनकम उनके पास कहाँ से आएगी, तो फर्स्ट है इनकम ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो हेल्प करेगी वहाँ से, जैसे कि ग्रांट्स है, सब्सिडीज़ हैं, कंट्रीब्यूशन है. और सेकंड है प्रोजेक्ट ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो भी प्रोजेक्ट चालू है उसके लिए जो ग्रांट मिलती है वो. सेकंड है ऑक्ट्रॉय, जो गुजरात में ऑक्ट्रॉय सिस्टम बंद हो गई है. ऑक्ट्रॉय में ऐसा होता था कि दूसरे स्टेट से अगर कोई कमोडिटी आती है तो वो आपको टैक्स भर के वो पर्टिकुलर स्टेट में एंट्री आप ले सकते हो. फिर प्रॉपर्टी टैक्स में से उनके पास इनकम होती है, जैसे कि जनरल टैक्स, वाटर टैक्स, वैकेंट लैंड टैक्स, जो खाली ज़मीन होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है. अदर टैक्सेस में है व्हीकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन सेस. एंड इनकम्स अदर देन टैक्स इनकम्स यूजुअली कलेक्टेड एज पर रूल्स, जैसे कि फीस ऑन यूज़ ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, fees collected from public places,
एंड फीस कलेक्टेड अगेंस्ट पब्लिक सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये साइड वाला उन पूरा जो है वो उनका इनकम सोर्स है। और एक्सपेंस कहाँ पे होगा, ये वाला जो है ये हमें एक्सपेंस दिखा रहा है। तो एक्सपेंस टू गेट ग्रांट्स, सब्सिडीज एंड कंट्रीब्यूशन। सेकंड है लोन चार्जेस। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, पेंशन एंड सो ऑन। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टेलीफोन बिल्स, स्टेशनरी एंड सो ऑन। फिफ्थ है एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे वो एक्सपेंस होगा। ये जो था वो था करंट अकाउंट बैलेंस शीट। अब ये साइड वाला जो है ये है कैपिटल अकाउंट, यानी लॉन्ग टर्म वाला जो अकाउंट है वो। तो यहाँ पे इनकम सोर्सेज क्या है, तो ग्रांट्स रिसीव्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कॉरपोरेशन, borrowed capital, the capital incomes from example funds for housing schemes from state government। और ये एक्सपेंस कहाँ पे होगा, तो एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, परचेज ऑफ मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन। तो ऐसी बैलेंस शीट बजट की होती है जहाँ पे इनकम और एक्सपेंस दिखाया जाता है। ये खाली एग्जांपल है इसलिए यहाँ पे वर्ड्स है, अदरवाइज जो रियल बैलेंस शीट आती है उसके अंदर फिगर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं कि कितना मनी कहाँ से आता है, लैक्स में या करोड़्स में। इस तरह से ये बैलेंस शीट बनती है। तो हमने ये तीन बैलेंस शीट तीन और तीन गवर्नमेंट की देख ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन एशिया। पंचायत मीन्स एन असेंबली ऑफ 5। पंचायत का मतलब होता है जो 5 लोगों की जो असेंबली होती है, दैट इज कॉल्ड पंचायत। In India, for rural administration, district panchayats, taluka panchayats, gram panchayats are a part of the 3-tier government. According to the Constitution of India, panchayats is their respective areas can prepare a plan for economic development and social justice and also execute it. So panchayat is also called as the laboratory for the central government, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो ट्रेनिंग मिलती है वही पर्सन आगे जाके अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसको वो एक्सपीरियंस काम में आते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट स्टेट हैव वेरियस फॉर्म ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। टू फैसिलिटेट दिस, स्टेट मस्ट डेवलप फंक्शंस टू दैम। Several functions are mentioned in their list of responsibility by the Constitution of India. States also provide them finance as per recommendation of State Finance Commission. Responsibilities are executed by various committees called Gram Sabha Samitis or may be called by other such name। तो यहाँ पे जो भी उनका वर्क है वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो भी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट से उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, तो पहले ये देख लेते। द पंचायती राज एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर स्ट्रेंथ टू दिस इंस्टीट्यूशन and now they do not have to depend too much on recommendation of state finance commission and upon the state governments, but they get some funds in their accounts directly from the center। तो पंचायती राज एक्ट के आने की वजह से अब ये जो भी पंचायत है, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच हो गई है। अब यहाँ पे उनको स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ता है। Thus, they are financially better off than before and also enjoy greater decision making power। तो लेटेस्ट फिगर ये है कि कुछ इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा विलेजेस है, उसमें से 3.5 लाख विलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऑनलाइन अटैच है। ये लेटेस्ट फैक्ट है अभी का 2020 का। अब इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है पंचायत के, तो फर्स्ट शेयर इन स्टेट टैक्सेस एज सजेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन।
स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें हर एक पंचायत का एक शेयर होता है, एक पोर्शन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या तो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। ग्रांट्स रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलती है। एंड फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई विलेज या टाउन में है तो उसके लिए फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। सो दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पंचायत, उसके जो एक्सपेंडिचर कहाँ उनको करना है। तो पंचायत्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर सप्लाई। उनका पहला काम है वाटर सप्लाई करना, वाटर पम्प्स लगाना, सुवेज, रोड्स, क्लीनलीनेस, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर कंसर्न रीजन एंड सो ऑन। तो ये जितने भी एक्सपेंस है वो सब पंचायत को करने हैं। यहाँ पे उनका जो इनकम है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये है फंक्शन ऑफ पंचायत एंड इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स इन बजट। बजट में कहाँ कहाँ शॉर्टेज होती है वो है। तो बजट कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। An unbalanced budget can have a surplus or a deficit. The type of deficits in a budget with specific reference to India are first revenue deficit। तो किस हिसाब से deficit यानी एक तरह की कमी वाला बजट जिसको बोलते हैं। तो ये 4 टाइप की कमी होती है। उसमें से पहली है रेवेन्यू डेफिसिट। Revenue deficit arises when total expenditure of the government on revenue account is more than total receipts of the government on the revenue account। यानी रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो वो रेवेन्यू डिफिक्ट बजट बोला जाता है। रेवेन्यू अकाउंट कंटेन करंट ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड अ डिफिसिट इन दिस अकाउंट इन अ सिंपल sense means that the government is not able to meet its routine expenditures from its current income। तो उनके जो एक्सपेंस होते हैं रूटीन एक्सपेंस होते हैं वो उनकी जो रूटीन इनकम है उससे वो मैच नहीं होता है। दिस शोज इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। तो ये क्यों होता है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वहाँ से आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, तब जाके ये होता है। क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ ही है पर सामने इनकम उतनी नहीं आ रही है। सच अ डेफिसिट कैन बी मेड बाय ग्रेटर बोरोइंग ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो ये बैलेंस कब होगा कि फिर गवर्नमेंट को मनी बोरो करना पड़ेगा तब जाके ये बैलेंस होगा। तो ये हो गई रेवेन्यू डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर current as well as capital is greater than the total income current as well as capital in a budget, then budgetary deficit is said to have arisen। तो टोटल जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू और कैपिटल इनकम ये अगर अनइक्वल है तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो डेफिसिटी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट incurs deficit financing borrow from RBI to meet this deficit and the state governments borrow more from the central government which is called overdraft। तो इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से मनी बोरो करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इस हिसाब से उसको बैलेंस किया जाता है। थर्ड है फिस्कल डेफिसिट। द बोरोइंग ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट आर कंसिडर्ड एज इनकम ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो मार्केट में से जो गवर्नमेंट मनी लेते हैं वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है। हाउएवर दिस इज अ डेप्ट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड मस्ट नॉट बी इंक्लूड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो ये तो गवर्नमेंट ने डेप्ट क्रिएट किया है, ये इनकम सोर्स नहीं बोला जाता है। Hence, if market borrowing are added in a budgetary deficit, then we get fiscal deficit। Fiscal deficit is therefore higher than budgetary deficit। In other words, fiscal deficit is equal to total expenditure minus total income, जो इंक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग, मार्केट में से जो पैसा लिया है उसको भी अगर
काउंट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे तो हमें फिस्कल डेफिसिट यानी कहाँ पे कमी है वो पता चलता है. एंड प्राइमरी डेफिसिट, दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडियन बजट. प्राइमरी डेफिसिट इज obtained आफ्टर डिडक्टिंग interest payments for fiscal deficit. Interest payments constitute an important part of government expenditures, but these are not expenditures actually incurred on current activities, but are an inevitable burden to be paid for amounts borrowed in the past. तो ये जो पास्ट में जो भी मनी बोरो किया है उसके लिए जो एक्सपेंस करना पड़ता है वहाँ पे ये प्राइमरी डेफिसिट मिल जाती है. हैंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट टेक्स आउट इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट. दिस कॉन्सेप्ट डजंट हैव पॉलिसी सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जो पहले के टाइम पे जो भी लोन्स या तो मनी बोरो किया उसके पीछे जो इंटरेस्ट देना है उसमें ये काउंट होता है. तो ये 4 तरह की कमी बजट में होती है. इसको कमी वाला बजट बोलते हैं. अब हमें देखना है कि बजट प्रिपेयर करने की इफ़ेक्ट क्या होती है. सो इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है. तो द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट हैज़ effects like, first, it brings fiscal discipline in governments as there is an attempt to incur expenditure in accordance with incomes to keep deficits in control. तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे इनकम कम हो रही है, कहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, कौन से एक्सपेंस को कम करना है. सेकंड है इट जस्टिफाइज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग वेरियस सेक्टर अकॉर्डिंग टू नीड एंड प्रायोरिटी. तो बजट प्रिपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्रायोरिटी है. थर्ड है इट गिव्स डायरेक्शन टू इन्वेस्टमेंट बाय एलोकेटिंग बजटरी फंड्स इन वेरियस सेक्टर एंड रेगुलेट्स डिमांड बाय रेगुलेटिंग द डिस्पोजेबल इनकम्स ऑफ पीपल बाय इम्पोजिंग राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस. तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है पर जो डिमांड है वो अननेसेसरी प्रोडक्ट की हो रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी जिसकी वजह से वो जो अननेसेसरी डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाए. फोर्थ है बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड डायरेक्टिंग एक्सपेंडिचर इन द नेसेसरी सेक्टर्स, अ बजट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलाइजेशन अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. तो बजट से हमें ये पता चलता है कि कितना टैक्स रखना चाहिए, कौन सा डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर में ज़रूरी है. इससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन, अ बजट हेल्प्स टू फुलफिल अ नेशंस और स्टेट्स ऑब्जेक्टिव प्रिटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है हमारे पास कितना मनी आने वाला है या है तो हम एक्सपेंस के बारे में क्या डिसाइड करेंगे. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है कि इफ़ वी नो द इनकम रिसोर्स देन वी प्लान आवर एक्सपेंस. इफ़ वी वर्क बोथ टुगेदर प्रॉपरली देन वी गेट मोर बेनिफिट. अगर हमारे इनकम से ज़्यादा हमारा एक्सपेंस होगा तो इट्स क्रिएट प्रॉब्लम. वैसा ही हमारी कंट्री के लिए है कि कंट्री की इनकम से ज़्यादा अगर कंट्री का एक्सपेंस होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. पर अगर हमारे पास पूरा प्लान है देन वी कैन डू द परफेक्ट वर्क एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन. तो बजट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रन द कंट्री प्रॉपरली. और बजट अगर प्रॉपर होता है कंट्री का, अगर हर एक सेक्टर को उसको बेनिफिट मिलता है देन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम मोर फास्टर. पर जनरली डेवलपिंग नेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन होता है जिसकी वजह से जो बजट है वो पूरा प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फैमिली का हम बजट ले लें कि हमारी फैमिली का बजट 10,000 का है पर मंथ और एकदम से 10 गेस्ट आ गए 10 दिन के लिए रहने के लिए. तो अब ये हमारा जो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि 10,000 में 4 लोग तो सर्वाइव कर लेते हैं और 14 अगर एक साथ में सर्वाइव करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा.
तो इस हिसाब से ये एग्जांपल कंट्री के लिए भी हम सेट कर सकते हैं कि कंट्री की इनकम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंस होता है और पॉपुलेशन इफ is in control, then we make our economic activity more better. तो दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर. इसके बाद जो है वो ग्लोसरी वर्ड्स हैं. ये आपके ग्लोसरी वर्ड्स हैं. ये आपको सब रीड कर लेने हैं और उसको याद भी रखना है. एग्ज़ाम्स में ये आता है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी आप जितना भी इसको याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट अभी जितने आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आगे जो इकोनॉमिक्स आने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. बहुत इजीली आप उसको समझ जाओगे, क्योंकि मास्टर्स में, कॉलेज लेवल पर यही सब इकोनॉमिक्स में आता है. इसके अलावा और कुछ नहीं आता. ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक के. ओके, तो इसके बाद अब लास्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स इकोनॉमिक्स GSCB बोर्ड. इकोनॉमिक थॉट के बारे में कि क्या क्या इकोनॉमिक थॉट है. तो हमारे जो गांधी जी है या कौटिल्य है या पंडित, जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सेंड मी योर सजेशंस. आपके मैसेज आने चाहिए, आपकी क्वेरी आनी चाहिए, आपके सजेशंस आने चाहिए. दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली. अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ टेक्स्ट करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ. गुड बाय.